ये जो दो फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, एक लक्ष्य जो 2004 में आई थी एंड अब 2025 में 21 साल बाद 120 बहादुर, दोनों में एक बात समान है, दोनों में फरहान थे। उस फिल्म में बतौर डायरेक्टर, इस फिल्म में बतौर एक्टर, आप ही के लिखे हुए शब्द जी एज अ फादर, एज अ राइटर, व्हेन यू जी सी योर सन लिविंग दोज इमोशंस जी परफेक्टली। जी जी, अब थोड़ा नेपोटिज्म तो का होता है ना जी। बिल्कुल नहीं हो सकता जी, है ना। The only one with a shy smile was your son there. जी, it's nepotism in reverse. I've seen the film and I am their worst critic. Generally, they are not happy with me, but I must accept that they have made a very good film. Very good. डांटिएगा मत, सोच के मैंने सवाल लिखा है कि आपने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, यू नेवर स्टूड ऑन द बॉर्डर, लेकिन जब आप लिखते हैं, वेदर इट इज अ संदेशे आते हैं, वेदर इट इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ लक्ष्य, या ये गाना, एक और गाना है विच एवरीवन विल गेट टू एक्सपीरियंस, जब सब ऐसा लगता है कि आपने फौजियों के बीच वक्त बिताया है, वो जो महसूस कर रहे हैं वो आप कैसे महसूस कर लेते हैं? दोनों ही बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इमेजिनेशन है. I have spent some time with the army people when I intended to, while the Operation Vijay was on, I had gone there. The battle was on. And after 1 year, General Arjun Ray invited me, the first anniversary of Operation Vijay. And Daras, which is the second most cold, inhabitable place in the world after Siberia, that is where they have made a Shahid Samarak. And only two people addressed the army that day, Arjun Ray and me. And he was kind enough to give me all the facilities to go to different regiments and stay with them for a couple of days and so on. And I discovered that it is another world. We only know army by their uniform. It is a complete culture. It is a complete way of living. They are another people and they are exceptional. There is so much to learn from them. So then I wrote Lakshya and again went back to the officers and seniors and got it corrected, the vocabulary, the expression, and so on and so forth. So that was a big exposure. But I think every Indian has great respect for Indian Army. It is perhaps, I won't be exaggerating if I say, that today Indian Army is the most respected institution of this country. सुखी पाजी का मैं एक बोल देता हूँ, ये जब भी स्टेज पे माइक पे जाते हैं, he has energy, it's power and energy, और एक रूहदारी है जो बिल्ट इन है, वो निकालनी नहीं पड़ती, वो ऐसे स्विच ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, वो पहुंच गए, it's on. And so the emotion comes from within, the power he has already. That's the man, Sukhwinder Singh, and I don't think there is any other voice that would do justice to this song. इतना भी तारीफ मत करिए, बाकी के लोग खिलाफ हो जाएंगे. बेसिकली जब एक ट्यून हम बनाते हैं तो अंदर हमारे क्रू होती है जो सिचुएशन को फील कर रही होती है. हम बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके ट्यून बनाते हैं, लेकिन उस जिस्म में रूह देने का काम होता है शायर का, लिरिक्स राइटर का. वो काम किया है जावेद साहब ने, क्योंकि जो हमारी आवाज है धुन की, वो जावेद साहब ने ही दी है. थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने 4 चांद लगा दिए हमारी एक छोटी सी धुन को इतना खूबसूरत बना दिया. थैंक यू सो मच. आप सब हमारे साथ मिलके बोलिए, दादा किशन की जय, भारत माता की जय. थैंक यू सो मच. डांटिएगा मत, सोच के मैंने सवाल लिखा है कि आपने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, यू नेवर स्टूड ऑन द बॉर्डर, लेकिन जब आप लिखते हैं, वेदर इट इज अ संदेशे आते हैं, वेदर इट इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ लक्ष्य, या ये गाना, एक और गाना है विच एवरीवन विल गेट टू एक्सपीरियंस, जब सब ऐसा लगता है कि आपने फौजियों के बीच वक्त बिताया है, वो जो महसूस कर रहे हैं वो आप कैसे महसूस कर लेते हैं? दोनों ही बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इमेजिनेशन है. I have spent some time with the army people when I intended to, while the Operation Vijay was on, I had gone there. The battle was on. And after 1 year, General Arjun Ray invited me, the first anniversary of Operation Vijay. And Daras, which is the second most cold, inhabitable place in the world after Siberia, that is where they have made a
Shahid Samarak, and only 2 people addressed the army that day, Arjun Ray and me. And he was kind enough to give me all the facilities to go to different regiments and stay with them for a couple of days and so on. And I discovered that it is another world. We only know army by their uniform. It is a complete culture. It is a complete way of living. They are another people and they are exceptional. There is so much to learn from them. So then I wrote Lakshya and again went back to the officers and seniors and got it corrected, the vocabulary, the expression and so on and so forth. So that was a big exposure. But I think every Indian has great respect for Indian Army. It is perhaps, I won't be exaggerating if I say that today Indian Army is the most respected institution of this country. The most trustworthy. We respect our army, which is a fact. So, I mean, they were kind enough to give me so much time. And then when this offer came for writing lyrics for this, so obviously that experience which I got during Lakshya came handy to me. ये जो 2 फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, एक लक्ष्य जो 2004 में आई थी एंड अब 2025 में 21 साल बाद 120 बहादुर, दोनों में एक बात समान है, दोनों में फरहान थे। उस फिल्म में बतौर डायरेक्टर, इस फिल्म में बतौर एक्टर, आप ही के लिखे हुए शब्द एज अ फादर, एज अ राइटर, व्हेन यू सी योर सन लिविंग दोज इमोशंस परफेक्टली। जी अब थोड़ा नेपोटिज्म तो का होता है। नहीं होता। The only one with a shy smile was your son there. It's nepotism in reverse. Thank you so much, क्योंकि इस गाने से एटलीस्ट हमें ये समझ आया है, इसके जरिए ये समझ आया है दैट ये धरती सिर्फ जमीन नहीं होती है, ये माँ भी होती है। थैंक यू सो मच जावेद साहब, थैंक यू सो मच अमित, एंड थैंक यू सो मच टू श्रेया घोषाल। बहुत बहुत I शुक्रिया। may or may not get this chance again, so I must use it. And I must congratulate Ritesh, the director, Farhan. I've seen the film and I am their worst critic. Generally, they are not happy with me. But I must accept that they have made a very good film. Very good. Thank you so much जावेद साहब, थैंक यू सो मच अमित। प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू। सुखी बाजी, वो पैशन जो है वो साफ झलकता है जब आप गाते हैं। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। मुझे अभी भी याद है एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो अक्सर मिलता है जब गाना खत्म हुआ, वॉइस रिकॉर्डिंग गाना कंप्लीट हुआ, फिर एक छोटी सी डिमांड आई और जावेद साहब को रिक्वेस्ट किया कि बिगिनिंग में कुछ ला सकते हैं क्या, कुछ साकी कहते हैं उसे, कुछ शेर, कुछ जज्बा। मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट उन्होंने लाके लिख के सामने दे दिया। फिर मैं वहीं पे खड़े होके गाया। सलीम सुलेमान, आपने भी कहा ना सलीम, तो आप सलीम मेरे को कंसीडर कर सकते हैं। क्या बात है ना? तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मैं जो समझता हूं कि हर गाने का मैं तीसरा किरदार हूं। I'm a third person of every तीसरा song. नहीं भाई, पहला किरदार। नहीं, आवाज तो आपकी निकलती है सबसे पहले। नहीं, लिखा जाता है फिर उसे बनाया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता तो मैं आखिरी किरदार हूं, पर तीसरा कैरेक्टर हूं, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट किरदार हूं। कि बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, कितना डिजाइन करना उसकी पोइट्री, तब जाके फिर वो हमारी टर्न आती है किसी भी सिंगर की जो अच्छा गाते हैं। आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या था, एनर्जी को संभालना या उस इमोशन को बरकरार रखना गाने में? अगर मुश्किल होता तो मैं गा ही ना पाता। मुश्किल वाला काम कुछ नहीं है। देखिए, सुखी पाजी का मैं एक बोल देता हूँ, ये जब भी स्टेज पे माइक पे जाते हैं, he has energy, it's power and energy, और एक रूहदारी है जो बिल्ट इन है, वो निकालनी नहीं पड़ती, वो ऐसे स्विच ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, वो पहुंच गए, इट्स ऑन।
And so the emotion comes from within. The power he has already. All we needed was beautiful words which Javed Saab has beautifully written, ऑफ कोर्स and that was it. अगर इस गाने को सिर्फ कोई पढ़े और सोचे कि ये गाना किसको गाना चाहिए, that's the man, Sukhwinder Singh, and it I is don't the think most- there is any other voice Yeah. that would do justice to this song. इतना भी तारीफ मत करिए, बाकी के लोग खिलाफ हो जाएंगे। मैं एक बार इस कॉम्पोजिशन की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब हम फिल्म में ये गाना जो है वो देख पाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, रणभूमि का जोश, वीरों का वो बलिदान, जब आप दोनों कंपोज करने बैठे, स्लिम एंड यू, वो दर्द और गर्व दोनों को सुर में बंधे रखने के लिए कितनी मुश्किल थी? ये कॉम्पोजिशन एक बात है, और उसके ऊपर जो इमोशन जो आता है वो लिरिक्स से आता है. एंड जावेद साहब हैज डन, you can hear the magic of the lyrics and the emotion of the lyrics coming into the veerta of the celebration of the song, and the क्या बोलते हैं उसको, the bravery जो म्यूजिक के थ्रू से आ रही है, and the voice that creates the power behind the music. तो मैं difficult नहीं कहूँगा, challenging शायद है थोड़ा सा, मगर when you have maestros like Javed Saab writing such beautiful lyrics, it becomes very easy. पहला सवाल शायद कंपोजर से ही पूछ लेता हूं. यहां वो दुआ भी है और साथ में वॉर का वो बैकड्रॉप भी. जब आप इस गाने को बना रहे थे, उसको बैलेंस कैसे किया आप लोगों ने? क्योंकि वो साफ झलकता है इसमें. देखिए, इट्स अ टीम वर्क. बेसिकली जब एक ट्यून हम बनाते हैं तो अंदर हमारे क्रू होती है जो सिचुएशन को फील कर रही होती है. हम बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके ट्यून बनाते हैं, लेकिन उस जिस्म में रूह देने का काम होता है शायर का, लिरिक्स राइटर का. वो काम किया है जावेद साहब ने, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है धुन की, वो जावेद साहब ने ही दी है. थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने 4 चांद लगा दिए हमारी एक छोटी सी धुन को इतना खूबसूरत बना दिया. थैंक यू सो मच. I would like to thanks Javed Bhai, Ashish Kaur for giving heart and soul to the song. Entire Excel team, Z Music Company, thank you so much for having us board. Thank you so much. अभी कुछ गुड इवनिंग एवरीवन. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप सब हमारे साथ मिलके बोलिए, दादा किशन की जय, भारत माता की जय. थैंक यू सो मच. Thank you. जावेद भाई, आशीष, आप जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्यार भी इबादत बन गई है. नैनेरा लोभी में एक दर्द है, दुआ है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे. जब आपने गाना रिकॉर्ड किया, क्या आपको लगा कि ये एक मोहब्बत का गाना है, या फिर शायद एक अलविदा, एक पत्नी का उस जवान के लिए जो सरहद पे जा रहा है? जी जावेद भाई. सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब. जब इस गाने की ट्यून और इसके लिरिक्स मैंने सुने, और जब मैंने ये सुना कि ये गाना जावेद साहब ने लिखा है, तो सबसे पहली बात तो एक अजीब सी एक जिम्मेदारी कांधों पे आ जाती है एक सिंगर के लिए, कि जावेद साहब के जो लिरिक्स हैं उनको वो कितना जस्टिफाई कर पाएगा, एक नहीं कर पाएगा. मुझे जब भी मौका मिलता है उनके साथ काम करने का, जुड़ने का उनके साथ, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक अपॉर्चुनिटी महसूस करता हूँ, और इस गाने में भी मैंने वही की. और आप यकीन मानिए, ये मुखड़ा आता है. अब मुखड़े में वो एक हीरोइज्म भी दिखना चाहिए, रोमांस भी दिखना चाहिए, और हीरो की एंट्री, ये 3 चीज़ें एक साथ दिखनी चाहिए. तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी, और लाइंस भी मेरी कुछ 3-4 लाइंस हैं, तो उसमें बेस्ट करना है. तो ये मैंने पूरी कोशिश करी, और मेरे दिमाग में ये था कि ये गाना फरहान सर सुनेंगे, जावेद साहब सुनेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि ना ये करेक्ट जस्टिफाई किया है. मैंने कोशिश पूरी की है. अब मैं जावेद साहब का चेहरा देख रहा हूँ. फरहान सर, थैंक यू सो मच. मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सच्ची जेन्युइनली बता रहा हूँ. मैं जो भी आपकी फिल्में आती हैं, या मुझे दूसरी बार जुड़ने का आपसे मौका मिल रहा है, वज़ीर में मैंने गाया था उनके लिए, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस गाने के ज़रिए
दोबारा से आपसे मिलने का, आपके साथ काम करने का, एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे, एंड ऑफ कोर्स अमजद, नदीम, आमिर, दे आर लाइक माई यंगर ब्रदर्स, और बहुत टैलेंटेड है और बहुत पैशनेट होके काम करते हैं। और कोई भी सिंगर को जब कंपोज़र एक फ्रीडम देता है कि आप इसमें करिए, जैसे मैंने इसमें आलाप गाया है, तो वो आलाप ऐसे ही मैं रैंडमली गा लिया, तो वो आलाप इन्होंने इतना बोले कि ये रखेंगे गान आलाप इसमें जो फर्स्ट म्यूजिक में आता है। जब ऐसी कोई फ्रीडम देता है ना कंपोज़र, तो सिंगर ऐसा दिल करता है कि अपना कलेजा निकाल के उस गाने में रख दे, और मैंने पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो ऑल द वेरी बेस्ट अमजद, नदीम, आमिर, एंड ऑफ कोर्स असीस। ये हमारा पहला गाना है साथ में, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके साथ गाने का मौका मिला। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much.